As long as you are a Dalit, you can never become a ruler of this country. So a person who is greedy in the money or otherwise greedy for power, that person is not ready to introspect himself. So after Kanshiramji came into the political existence, the shoemaker community, scavenger community, ordinary rickshawala, they started to think that I will become a MLA, I will become a MP, I will become a cabinet minister. They thought that I will become a prime minister of India also. Most of the people are not happy because I am not highlighting Baba Ambedkar. In revolution movement, we cannot expect a lot of people like a duck. So we need a lion, not a pig. I am seeing you all as a lion to the Bahujan Dravidian movement. A person who is having a mentality of pig, they are in the Congress or they will go to the BJP or otherwise Ambedkar party. Is having this type of idea, don't come and join in our party. The person who is suffering from the oppression or otherwise atrocity, humiliation, that person expecting some revolution happen among the Bahujan society. They are thinking that we successfully killed Manuwad Kanshiram, but we people are here to pull the caravan of Manuwad Kanshiram. Periyar and Kanshiram, both the icon is enough to unite our people. Some people are nowadays, even the followers of Kanshiram, they are simply projecting themselves as I belong to Chamar or I belong to this community, I belong to Mahar. These people will never become a ruler of this country. Kanshiramji told about who is our common enemy. Periyar also told if your mind is occupied with the Ambedkarism, you couldn't find the in-depth meaning of Manuwad Kanshiramji's thought. Not seeing a Brahmin as a human being or individual, he is coming along with the ideology, he is moving along with the ideology. Whether you are roaming in the society with ideology, Brahminism means they wanted to kill your consciousness. That is their target. So either you say I am a Kanshiramist or Periyarist. Then only your enemy also gets scared, and also your chamchas also gets. This movement, this cultural movement, political movement, social movement started from Kabir, Dravidians, Guru Nanak. Those gurus started this movement. The direct war is going to happen in year 2024. A person who is ready to give your head, that person only can eligible to fight against this Sanatana Dharma. Before the world declares India as a terrorist country, Modi has to step down from his power. Today, we are observing 17th anniversary of Manuwad Kanshiramji. साथियों, आज हम मानववाद कांशीराम साहब की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 70वीं किस्मत दिवस या इसको जयंती कर सकते हैं, जयंती मना। So rest of the so-called Kanshiramists, they are going to observe October 9th as their death anniversary. तो जो कांशीराम साहब के तथाकथित अनुयायी है, वो माननीय कांशीराम साहब की जो पुण्यतिथि है उसको 9 अक्टूबर को मनाते हैं। Whoever was with Kanshiramji, they could know which date, whether October is the 8th day is the real date of death anniversary of Kanshiram or otherwise 9th October. जो माननीय कांशीराम साहब के करीबी साथी रहे हैं, उनको पता है कि माननीय कांशीराम साहब की जो डेथ हुई वो 8 अक्टूबर की रात को हुई या 9 अक्टूबर की रात। So we people are really followers of Kanshiram, not only his personality, we are really following his thought. तो हम सब माननीय कांशीराम साहब के अनुयायी हैं। उनकी जो बगावत थी, उनकी जो पर्सनालिटी थी, उसके अनुयायी नहीं, बल्कि उनका जो विचार था, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, थॉट था, हम उसके अनुयायी हैं। So I thought that I want to invite one special guest for this program, national. This is actually
after register the party, this is the first national committee meeting we are conducting. तो इसलिए हमने, क्योंकि जब से हम लोगों ने पार्टी रजिस्टर कराई, उसके बाद से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली बैठक है। So that हम लोगों ने ये सोचा कि ये बैठक माननीय कांशीराम साहब के जो 17वीं जो जयंती है, उस दिन को ही ऑर्गेनाइज करनी। So that's what I invited a person who is serving along with Phulan Devi, Mr. Kashyap. I invited today's executive meeting as a special guest. तो इसलिए इस मीटिंग, ये जो हमने केंद्रीय कोर कमेटी की मीटिंग की है, बैठक आयोजित की है, इसमें हमने पार्लियामेंट फूलन देवी के निकट सहयोगी रहे सुभाष कश्यप जी को एज ए विशिष्ट अतिथि हमने आमंत्रित किया। Today is the day of introspection. You have to introspect yourself that we are going, our Samaj is going in the right path, otherwise it is going against our Bahujan Mahapurush. तो आज हमें जो जब हमें आत्मचिंतन करने का टाइम है कि हमारा जो समाज है वो सही रास्ते पे जा रहा है, जो हमारे महापुरुषों का रास्ता बताया हुआ रास्ता है, समाज उस रास्ते पे जा रहा है या रास्ते से भटक कर गलत रास्तों में पड़ गया। This is a day of introspection yourself. ये हमारे आत्मचिंतन का समय है। So a person who is greedy in the money or otherwise greedy for power, that person is not ready to introspect himself. तो जो पैसा और सत्ता के लालची लोग हैं, वो अपने आप को आत्मचिंतन की ओर नहीं ले जाते, वो आत्मचिंतन करना नहीं चाहते। Bahujan ideology is a revolutionary ideology. ये जो बहुजन विचारधारा है, ये क्रांतिकारी विचारधारा है। Bahujan revolution means what? A person who is in the thirsty, or otherwise the person who is suffering from age-old caste system, or otherwise the person who is suffering from the oppression or otherwise atrocity, humiliation, that person expecting some revolution happen among the Bahujan society. So for that people, movement is Bahujan movement. तो ये क्रांति कहाँ पैदा होती है? ये कभी सुविधा भोग वर्ग के अंदर क्रांति पैदा नहीं होती। क्रांति वहां पैदा होती है जब सामाजिक अन्याय अत्याचार से पीड़ित लोग हैं, जात से पीड़ित लोग हैं, अर्थ से पीड़ित लोग हैं, सोसाइटी से पीड़ित लोग हैं। तो जो ये बहुजन समाज है, जो पीड़ित समाज है, उसको क्रांति की जरूरत है। In revolution movement, we cannot expect a lot of people like a duck or goat sheep in this movement. तो जो क्रांतिकारी आंदोलन होता है, उसमें बतख और बकरी जैसे, भेड़ जैसे चरित्र वालों की जरूरत नहीं होती। We need a lion like Phulan Devi. तो इस क्रांतिकारी आंदोलन को आगे ले जाने के लिए हमें बहुजन सेवनी फूलन देवी जैसे लोगों की जरूरत। We need a person like Kanshiram. हमें इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए मानववाद साहब कांशीराम जैसे जुझारू नेताओं की जरूरत पड़ती है। So such a person only make a liberation to our majority people of this country. तो इस चरित्र के लोग, इस सोच के लोग भी हमारे बहुजन समाज को जो इनकी सामाजिक और आर्थिक मुक्ति का जो मिशन है, उसको फुलफिल कर सकते हैं। So we need a land, not a pig. तो हमें शेरों की जरूरत है, सुअरों की नहीं। I am seeing this, a person who are coming from the different parts of the country. I am seeing you all as a lion to the Bahujan Dravida movement. तो आप जो इस देश के अलग अलग क्षेत्रों के भागों से आए हुए लोग हैं, मैं समझता हूं कि आप बहुजन द्रविड़ समाज के शेर हैं, सच्चे शेर। A person who is a
are having a mentality of pick. They are in the Congress or they will go to the BJP or otherwise Aam Aadmi Party. Lions are not ready to go and mingle with the pigs. यदि समाज में जो सूर्य मानसिकता के लोग हैं, वो कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, जो मनुवादी पार्टियां हैं, उनके चरण चुंबन करने में लगे हुए। Kanshiram ji thought, he was thinking about only about the political power. His political power, he is not give the power to the Ambani, Adani or otherwise capitalist. He wanted to give a political power to the rickshawala, pot maker, shoe makers, washerman community, haircutter community. He wanted to give a power to such a poor people in this country. राजनीतिक जो मामला कांशीराम का है, उनका जो राजनीतिक विचार है, वो ये था कि हमें राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेनी। उनके ये राजनीतिक सत्ता की जो बात थी, वो कोई अडानी अंबानी के हाथ में सत्ता देने की बात नहीं थी। वो राजनीतिक सत्ता बाल काटने वाले व्यक्ति के हाथों में देना चाहते थे, जूता सिलने वाले व्यक्ति के हाथों में देना चाहते थे, कपड़ा धोने वाले व्यक्ति के हाथों में देना चाहते थे। इस तरीके से जो समाज से कटी हुई जातियां थी, उनको वो शासक कौन बनाना चाहते थे। यही मानव कांशीराम साहब था। If you having this thought in your mind, then only you can sustain in this party. Otherwise, you cannot sustain in this party. तो अगर आप इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, जैसा कि मानव कांशीराम साहब की मानसिकता थी, तभी आप इस पार्टी के साथ लंबे टाइम तक आप रह सकते हैं, और नहीं तो आप इस पार्टी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। It is very difficult because we people are thinking about the rickshaw wala. We people are thinking about scavenger people, Valmiki people, Banki people. If your mind is ready to accept those people also as a brother, then only you can able to work along with us. तो हम लोग जो चिंतित है, वो एक रिक्शे वाले के लिए, एक धोबी के लिए, एक सफाई कर्मी के लिए, इस तरीके जो समाज में जिनको सबसे निचला तबका कहा गया है, उनके लिए हम चिंतित है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो अगर आप उनको अपना भाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो आप इस पार्टी में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे। Yesterday, our Tamil Nadu and Kerala people went to Parliament. They wanted to stand up, take a photo in front of Parliament. Who had given that idea to that woman? तो अभी कल ही हमारे तमिलनाडु केरला यूनिट की जो साथी थे, वो इधर आ रहे थे, तो कल वो पार्लियामेंट हाउस गए और वहां पे खड़े होते वो फोटो। आप सोचिए कि हमारी जो बहुजन बहनें हैं, उनको पार्लियामेंट का सपना दिखाने वाला व्यक्ति कौन है? And also they chosen member of the parliament. I am going to book this MP quarters. तो वो हम बैठ के ये डिस्कस कर रही थी कि जब मैं पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट बन के आऊंगी, सांसद बन के आऊंगी, तो मैं इस वाली कोठी को चूज करूंगी। तो ये जो सोच है वो किसने डेवलप की हमारे लोगों के? Because an ordinary working class people thinking about the power, who given a thought to think as much as height. Before Kanshiram, our people couldn't thought like that. तो ये जो एक गांव स्तर में काम करने वाला व्यक्ति भी जो आज सत्ता की ऊंचाइयों के विषय में सोच रहा है, ये सोच डेवलप करने वाला व्यक्ति कौन था? वो सिर्फ माननीय कांशीराम साहब थे। उनसे पहले हमारे लोग उस स्तर की नहीं सोचते थे कि हम सांसद में बैठेंगे, मंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कांशीराम साहब की मूवमेंट की वजह से सफल हो पाया है। So-called Ambedkarist, lakhs of people I also know, because my father also follower of Ambedkar. In my village, the people used to say that, "Kaatuttu velaki ponanu, government velaki pono." What is the meaning of that? Means, so if you earn 25 paise, just you go to government job and get the 25 paise. That was a thought given by
our forefathers to our people. How it happened? That happened because of Baba Saheb Ambedkar. तो बाबा साहब, क्योंकि मेरे पिताजी भी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुयायी रहे हैं, तो उस जमाने में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुयायियों के जमाने में जो हमारा समाज सोचता था, हमारे यहाँ एक कहावत प्रसिद्ध थी कि अगर आपको 25 पैसे चाहिए तो आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जाओ और वहां से 25 पैसे की तनख्वाह प्राप्त करो. During the Baba Saheb Ambedkar period, after the Baba Saheb Ambedkar period, up to 82, before Kanshiram ji came into the political existence, people thought to go to only, they thought about only, they produce their children to become a IAS officer or otherwise clerk or otherwise IPS officer. People thought like that. The parents thought to make their children as a government employee. बाबा साहब के टाइम में और बाबा साहब के बाद भी करीब 80 के दशक तक जो हमारे लोगों की सोच थी वो यही थी कि हमें अपने लड़कों को अधिकारी, कर्मचारी, IAS, PS, फोर्थ क्लास कर्मचारी, क्लर्क, चपरासी यही बनाना है. तो उस जमाने में जो हमारे लोगों की सोच थी वो सिर्फ यहां तक थी. So after Kanshiram ji came into the political existence, the shoemaker community, scavenger community, so ordinary rickshaw wala, they started to think that I will become a MLA, I will become a MP, I will become a cabinet minister. Beyond that, they thought that I will become a prime minister of India also. तो ये मानवत कांशीराम साहब के राजनीति में आने की बात से ही ये संभव हो सका कि एक जूता बनाने वाला व्यक्ति, एक सफाई करने वाला व्यक्ति, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी ये सोचने लगा कि मैं या मेरा लड़का MP, MLA बनेगा, मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा. और यहां तक कि कुछ लोग तो ये भी सोचने लगे कि आने वाले टाइम में हम प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे. I am from Kanniyakumari. Right now I am standing in Delhi and I am staying in Delhi also. Why my children are studying here? How it happened to me? तो मैं कन्याकुमारी का रहने वाला और दिल्ली में खड़ा हूं, मैं यही रहता हूं. तो वहां से यहां में कैसे पहुंचा, ये घटना कैसे घटी, कैसे ये संभव हुआ, इसके पीछे क्या क्या प्रेरणा है. I am a lawyer. If I want to learn money, simply I can go to High Court, Chennai and earn money. But today I am staying here. It happened because of Manuwad Kanshiram ji. मैं पैसे में वकील हूं. अगर पैसे ही कमाने होते तो हमारे यहाँ में मद्रास हाई कोर्ट में जाता हूं, वहां वकालत करके खूब पैसे कमा सकता था. लेकिन दिल्ली आया. ये क्यों संभव हुआ? ये मानवत कांशीराम साहब की मूवमेंट की वजह से संभव हुआ. Today we are sitting in Delhi holding a political meeting and talking about our own politics. We are not representing from the caste of Brahmins or Baniyas. But even though we are thinking to rule this country means who had given this guts to us? आज हम यहाँ दिल्ली में एक कोर कमेटी की मीटिंग करके बगैर ब्राह्मण बनियों के अपने बहुजन समाज की मीटिंग करके शासन सत्ता के विषय में सोच रहे हैं. ये बदलाव कैसे आया? Manuwad Kanshiram, who taught us to do politics against mafia in the Congress and rowdies in the BJP. तो मानवत कांशीराम साहब का जो राजनीतिक विचार है वो जो कांग्रेस के माफिया है और भाजपा के गुंडे हैं उनकी सोच के, उनकी विचारधारा के विपरीत विचार है. So mafias, we are staying here and fighting against the mafias and rowdies, gundagaris. It is not an easy job because Kanshiram ji ideology is more than enough to finish Congress gundagaris, Congress mafias and BJP's gundagaris.
Kanshiram, the thought is more than enough. तो आज हम यहाँ दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में खड़े होके कांग्रेसी माफिया और भाजपाई गुंडों के खिलाफ बात कर रहे हैं कि ये ताकत कहां से आती है, साहस कहां से आया। ये माननीय कांशीराम साहब की जो राजनीति, जो उनका विचार का जो दर्शन था, वहां से आया। और ये जो माननीय कांशीराम साहब का दर्शन है, यही तो कांग्रेसी माफिया और भाजपाई गुंडागिरी को खत्म कर सकता है। So thought is more dangerous than the sword, weapon or gun, bullet. Thought is more dangerous. ये जो विचार होता है वो किसी भी बंदूक से, किसी भी तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होता है। Whether the Aryan came along with the lot of bullets or sword, or otherwise they came with the elephant regime or horse regime, they simply came like a gypsy and they promoted their thought. यहाँ भारत में जब आए तो क्या वो बड़ी बड़ी हाथियों की सेनाएं लेके आए, क्या वो बम मशीन लेके आए, क्या बड़े बड़े तलवार बर्छे लेके आए? नहीं, वो विचार लेके आए जिसको हम ब्राह्मणवादी विचार कहते हैं, और इस विचार को हमारे लोगों ने प्रसारित करना शुरू किया। So we people are making a gundagaris. It will not help to liberate our people. We need our people also looking like a gundagaris. हम एक गुंडे बनने को, जो हमारा बड़ा शौक रहता है कि हम गुंडे टाइप के लोग बन के इस व्यवस्था से लड़ेंगे, तो ये वैचारिक लड़ाई है, ये गुंडागिरी इसमें काम नहीं आएगी। You see that Manuwad Kanshiramji's body may be assassinated by the traitors, but they wanted to kill Manuwad Kanshiramji's thought. माननीय कांशीराम साहब की जो शरीर है वो अगर मर गया तो उतना ज्यादा दुख की बात नहीं है, लेकिन माननीय कांशीराम साहब का जो विचार है, लोगों ने उसको मारने का प्रयत्न शुरू किया है, और उस विचार को हमें किसी भी कीमत पर बचाना है, उसे मरने नहीं देना चाहिए। BJP and Congress, they are worrying about Manuwad Kanshiramji's thought. They are thinking that we successfully killed Manuwad Kanshiramji. But we people are here to pull the caravan of Manuwad Kanshiramji. तो ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी मनवादी पार्टियां हैं, इनको हमेशा से माननीय कांशीराम साहब के विचारों को डर लगा है, और आज उनकी हत्या के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है वो समझती है कि हम कांशीराम की जो लहर थी, जो उनकी विचारधारा थी, उसको दबाने में कामयाब हो गए। लेकिन किसी भी सूरत से हमें माननीय कांशीराम साहब के विचारों को मरने नहीं देना। Kanshiram, you are not seeing this Kanshiram as a portrait, as a picture. You don't see like that. He is a weapon to liberate not only your mind. This weapon is liberate your whole Samaj. तो आप इधर लगी मूर्ति को आप सिर्फ तस्वीर की तरह मत देखिए। कांशीराम जी कोई मूर्ति तस्वीर नहीं है, वो हमारे लिए मजबूत हथियार है, वो हमारी जो सामाजिक और मानसिक गुलामी है उसकी मुक्ति के लिए मजबूत हथियार है। उस तरीके से आप उसको देखना शुरू करें। Phulan Devi attacked whom? He never touched any Bahujan Samaj. Whoever oppressed in the name of caste, she attacked. तो फूलन देवी ने जो हमला किया था वो दिल्लियों के ऊपर किया था, किसी बहुजन समाज के ऊपर हमला नहीं किया था। जो बहुजन समाज को उत्पीड़ित प्रताड़ित करने वाले लोग थे उनके ऊपर फूलन देवी ने हमला किया। And also second icon you are seeing, na? Periyar. Periyar and Kanshiram, the both icon is enough to unite our people. आप दूसरे प्रतीक के रूप में पेरियार आपकी तस्वीर देख रहे होंगे,
तो ये जो दो प्रतीक है हमारे समाज में, मानव कांशीराम साहब और पेरियार, ये हमारे समाज को संगठित करने के लिए पर्याप्त। Manuwad Kanshiram ji consolidate all the SC, ST, OBC and religious minority under one umbrella. That umbrella, he made one umbrella. He made one community. That community called as a Bahujan community. तो मानवद कांशीराम साहब ने एससी जो 3,745 जाति बटा हुआ समाज था, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, उसको एक समुदाय के रूप में संगठित किया और उसका नाम दिया बहुजन समाज। Some people are, so nowadays, even the followers of Kanshiram, they are simply projecting themselves as I belong to Chamar, or I belong to this community, I belong to Mahar. These people will never become a ruler of this country, even eligible to become a chamchas also. आज हम देख रहे हैं कि मानवद कांशीराम साहब के अनुयायी तक जो लोग आज एज ए चमार अपने आप को पेश करते हैं, एज ए महान अपने आप को पेश करते हैं, तो ये जो जातियों में पेश करने का जो तरीका है, ये आपको कहीं नहीं ले जाने वाला। आप इस देश का इस तरीके के चरित्र में आप इस देश का शासक बनने को भूल रहे हैं, आप चमचा भी नहीं बन पाओगे इस तरीके के चरित्र में। Periyar consolidated 97% under one umbrella. That's called a non-Brahmins movement. पेरियार ने साउथ इंडिया में 97% लोगों को एकजुट करने का काम किया और उसके उन्होंने उस संगठन का उस विचार का नाम दिया गैर ब्राह्मण आंदोलन। That movement called as a Dravidian movement. और वो जो नॉन ब्राह्मण गैर ब्राह्मण मूवमेंट था, उसको उन्होंने कहा द्रविड़ आंदोलन। Kanshiram ji consolidate under one umbrella, that is Bahujan umbrella, Bahujan movement. So these two movements is consolidating, not only consolidating through numbers in politics, they are giving a threat to the Manuwadis or Brahmanwadi. तो ये जो माननीय कांशीराम साहब का काम है, जो उन्होंने 85% को एकजुट किया, उधर पेरियार साहब का जो काम है, जो उन्होंने 97% लोगों को एकजुट करने का काम किया, तो ये सिर्फ राजनीतिक बहुमत बनाने वाली बात ही नहीं है। इससे ब्राह्मणवाद को थोड़ा जस्ट डर पैदा हुआ ब्राह्मणवाद में कि अगर ये इस तरीके के जो प्रयोग है, अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। Most of the people are not happy there because I am not highlighting Baba Ambedkar. So they are very poor in their understanding, I think so. जो हम अपने प्रतीकों को हाईलाइट करने का जो प्रयोग कर रहे हैं, उसमें मानवद कांशीराम साहब और पेरियार को हाईलाइट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के शिकायत रहती है कि आप बाबा साहब को फ्रंट में क्यों नहीं ला रहे, तो वो हमें नहीं लगता कि ऐसी बात करने वाले लोग गंभीर रूप से राजनीति के विषय में जानते सोचते। So enemies also, they are threatening me, and chamchas also, they are also not happy and they are warning me. Now I am having a sub struggle, one from the chamchas and one from the Brahminical forces, enemies. तो आज हम इस स्थिति में है कि एक तरफ तो जो हमारे दुश्मन है, जो हमको धमकियां देते रहते हैं, तो दूसरी तरफ लोगों और चमचे भी हमारी टांग खिंचाई करते रहते हैं। तो ये हमारी गहरे संघर्ष की स्थिति में हम ब्राह्मणवादी ताकतों को भी लड़ रहे हैं और अपने समाज में पैदा हुए चमचे को भी हमको लड़ना पड़ रहा है। How the chamchas killed Manuwad Kanshiram ji? They killed Manuwad Kanshiram ji's consciousness. तो ये जो चमचे हैं, उन्होंने मानवद कांशीराम साहब को कैसे खत्म किया? उन्होंने पहले सबसे पहले मानवद कांशीराम साहब की जो सोचने समझने की ताकत थी, उसको खत्म करने का काम। They wanted to keep a body alive, but they wanted to kill the consciousness of Manuwad Kanshiram. तो वो शरीर जीते रहते, शरीर तो हष्ट-पुष्ट हो दिख रहा, लेकिन जो सोचने समझने काम करने वाला दिमाग है, उसको उन्होंने खत्म किया। If your consciousness is very short,
you can easily tackle the conspiracy of the Brahminical forces. तो आपका अगर सोचने समझने की ताकत मजबूत है आपके अंदर, तो आप बहुत सरल तरीके से ब्राह्मणवादी संबंध को समझने में कामयाब होंगे। Brahmanism means they wanted to kill your consciousness. That is their target. तो ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद का मतलब है कि वो आपको मानसिक रूप से खत्म कर देना चाहता है। जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं उनका एजेंडा ये है कि बहुजन समाज को मानसिक रूप से समाप्त कर उसको मानसिक। They wanted to keep our people, majority people, like a pig, donkey, monkeys. तो हमारे लोग का जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं ये मानसिक स्तर पे गधा, बंदर और सुअर मानसिकता का बनाए रखना चाहिए। So that's what you are seeing in UP. Some people are started to take cow dung as their morning breakfast. तो आप देखिए यूपी में एक घटना है, वीडियो सामने आया था। कुछ लोग जो है तो गाय का गोबर सुबह के नाश्ते में खाना शुरू कर दिए। Cow is the Hindu ka mummy. The Hindu ka mummy is giving a cow dung. They also started to take. ये जो गाय है, गाय जो ब्राह्मणवादी हिंदू है वो गाय को मां मानते हैं और उस गाय माता के गोबर को वो नाश्ते में यूज कर रहे हैं। How they are attacking your consciousness? You have to think. Today is the day of introspection. तो आज परीक्षण का समय है। आप सोचो कि आपको किस स्तर का मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है कि गाय के गोबर को भी नाश्ते में खिलाया जा रहा है। Here, scheduled caste people are here. Scheduled tribes also here. OBC also here. Muslim Samaj is also here. Buddhist also here. Even Sikh people are here. How we are? You think how these Brahminical people fooling our human being? How they are cutting our consciousness? तो ये आज चूंकि इस मीटिंग में SC, ST, OBC, सिख, मुस्लिम, बुद्धिस्ट लोग जिसको माननीय कांशीराम साहब बहुजन समाज कहते थे, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आप ये समझिए कि ब्राह्मणवाद किस तरीके का षड्यंत्र करके आपको आपकी जो सोचने समझने की ताकत है उसको खत्म कर देना चाहिए। If your conscience is not working, means I am telling to you, you better to die. तो अगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप सोचने समझने की स्थिति में नहीं है तो आपका मर जाना ही अच्छा है। Why I am saying is, instead of roaming like a dead body, why we want to live as like a human? तो सबकी तरह इधर में घूमने से, मुर्गा की तरह इधर में घूमने से क्या फायदा? इसमें अच्छा तो आप मर ही जाओ। You are burdened to the society also. You are burdened to the family. Not only family, you are burdened to the earth also. तो जो ये बिना सोचे समझे जो चिंतन लाश बन के घूमने वाले लोग हैं वो अपने समाज के लिए भी बोझ है और इस धरती के लिए भी बोझ है। That's what Periyar started the movement, rational movement in Tamil Nadu. इसीलिए पेरियार साहब ने तमिलनाडु के अंदर तर्क संगत आंदोलन शुरू किया था कि आप तर्कशील बनो और तर्क संगत दिमाग का उपयोग करना चाहिए। Because he understood that the Brahminism idea is killing our people. So that's what he wanted to save our people. That's what he started the movement, rational movement to our Dravida Samaj. तो उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मणवादी विचार है वो हमारे लोगों को मानसिक रूप से खत्म कर रहा है, इसलिए उन्होंने ये जो रैशनल मूवमेंट है, जो तर्क संगत आंदोलन है, वो पेरियार साहब ने तमिलनाडु में शुरू किया। He was not fearing to see or take the snakes, Periyar. He was not afraid to see the snakes because snakes is not having any idea. But once the Brahmins coming in front of him, he was so alert. वो सांप को देख के कभी नहीं डरते थे क्योंकि सांप जो है उसके पास कोई विचार नहीं है,
लेकिन जब वो ब्राह्मण को देखते थे वो हमेशा सतर्क हो जाते थे। So that's what he was very much scared to see whoever comes in front of the Brahmin comes in front of him. He told to the people that, leave it, snake. I'll assault the Brahmins. तो वो हमेशा ब्राह्मणों को सतर्क रहते थे और अपने लोगों को सतर्क रहने की सीख देते थे। इसीलिए उन्होंने अपने लोगों को कहा था कि एक रास्ते में अगर सांप और ब्राह्मण आ रहा हो तो आप सांप को छोड़ दो, ब्राह्मण को कुचल दो। क्यों? क्योंकि सांप अगर डसता है तो किसी एक व्यक्ति को डसेगा और नुकसान होगा तो एक व्यक्ति का होगा, लेकिन ब्राह्मण की जो विचारधारा है वो पूरे समाज को डसने का काम कर रही, पूरे समाज को मानसिक तौर पर दूसरा लाभ बनाने का काम कर रही। Now you think how much his quote is very important. तो आप समझिए कि ये जो स्लोगन है पेरियार का उसका अपने आप में कितना महत्व है। Because he is not seeing a Brahmin as a human being or individual. He is coming along with the ideology. He is moving along with the ideology. Whether you are roaming in the society with ideology, तो उन्होंने ब्राह्मण को कोई एक व्यक्ति के तौर पे कभी नहीं देखा। उन्होंने ये देखा कि ब्राह्मण जब आता है वो एक विचार के साथ आता है। क्या वो चरित्र के अंदर है? क्या आपके अंदर वो विचार लेके चलने की क्षमता है? when I was doing a campaign in 2019 at Connaught Place, just I carried a Periyar photo in my hand. In Connaught Place, I carried a photo. Actually, Rajendra also that time was there. तो 2019 की बात है। 2019 का यहाँ पे विधानसभा चुनाव थे। उस टाइम हमारे एक साथी चुनाव लड़ रहे थे, तो कनाट राजवीर तो कनाट प्लेस में हम लोग प्रचार कर रहे थे। तो हम सिर्फ पेरियार की फोटो ऐसे हाथ में ऊपर करके खड़े थे सामने। Just I carried a photo and cast a vote for BDP. I carried like this. तो हम जो राजेंद्र जी साथ थे तो हम फोटो पेरियार की फोटो हाथ में, दोनों हाथ में लेके लोगों से कह रहे थे कि बीजेपी को वोट कर। So around hundreds of people came and started to fight along with our team. Why means you keep Kanshiram photo. That is not a problem for us, because that time the Kanshiram movement transformed from Bahujan to Sarvajan. That's what Brahmins also accepted, because Mayawati also removed Periyar from the Bahujan Samaj. Though they accepted, you keep Kanshiram photo. That is not problem in North India, but we people don't allow Periyar in this land. तो जो हमारी टीम थी उसके सामने करीब 100 लोग आ गए और वो इस बात का विरोध करने लगे। वो कह रहे हैं कि आप कांशीराम की फोटो लेके चलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पेरियार की फोटो हम यहाँ उत्तर भारत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो कांशीराम को भी इसलिए वो स्वीकार कर रहे थे क्योंकि उस टाइम तक मायावती ने कांशीराम के गौतम मूवमेंट को बदल के सर्जन कर दिया था, ब्राह्मणों का उसमें कब्जा था। And remove Periyar photo also. जो व्यक्ति के जो महापुरुषों की लिस्ट थी उसमें से पेरियार की फोटो हटा दी थी। इस वजह से वो कांशीराम को एक्सेप्ट करने को तैयार थे, लेकिन पेरियार को किसी भी हालत में वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। Still you people fail to understand the meaning behind why I am keeping a Periyar photo in our banner. और मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक हमारे उत्तर भारत के लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि मैं क्यों उत्तर भारत में पेरियार की फोटो को हाईलाइट करके चल रहा हूं। So I am telling to you also, whoever participating in the meeting, I am telling to you also. You also roam like a Kanshiram. So the Brahmins walking in the street with his own ideology. Just you also start with your walking with your own ideology in our society. यहाँ मौजूद लोगों में भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह ब्राह्मण चलता है वो अकेला कभी नहीं चलता, वो अपने विचार को लेके चलता है। उसी तरह आप लोग भी चलना सीखो। आप अकेले मत चलो, अपने विचारों के साथ लोगों के बीच में जाना सीखो, चलना सीखो।
So either you say I am a Kanshiramist or Periyarist. Then only your enemy also gets scared, and also your chamchas also get scared. तो आप लोग स्पष्ट रूप से ये कहने की आदत डालिए कि या तो मैं कांशीरामवादी हूं या तो मैं पेरियारवादी हूं। अगर आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो जो दुश्मन है वो हमेशा आपसे डरा रहेगा, और दुश्मन को छोड़ो, जो चमचे हैं वो भी आपसे डरेंगे। And also Kanshiram also told, not only Periyar, Kanshiram also told, one limbu drop of water is more than enough to finish the दूध. तो पेरियार ने ही भगवती ब्राह्मणों के बारे में कहा, कांशीराम जी ने भी कहा है। उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आप ब्राह्मणों को अपनी पार्टी में शामिल क्यों नहीं करते, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हमें डर है कि अगर ब्राह्मण हमारी पार्टी में आएंगे तो वो हमारे परिवर्तन के कामों को रोक देंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस तरीके से एक बूंद नींबू 1 लीटर दूध को, 1 बाल्टी दूध को फाड़ने के लिए पर्याप्त है, उसी तरीके से एक ब्राह्मण भी हमारे मूवमेंट को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। और आज उनकी उस टाइम की जो सोच थी, आज आप उन्हीं के पार्टी में देख सकते हो। Now, whoever wanted to join in the politics, you are doing the politics. Politics means we need an enemy. So without enemy, where you have to fight? तो हम सब एक राजनीतिक युद्ध में, और युद्ध में आपको एक दुश्मन की जरूरत, बिना दुश्मन के क्या युद्ध करोगे आप? जब दुश्मन ही नहीं है सामने तो युद्ध किससे करोगे? तो राजनीति में आपको अपने राजनीतिक दुश्मन की स्पष्ट पहचान करनी पड़ेगी कि हमें युद्ध किससे करना है। Who is your common enemy? तो यह आपको समझना पड़ेगा कि आप सबका साझा दुश्मन कौन है। Kanshiram ji told about who is our common enemy. Periyar also told who is. तो जो माननीय कांशीराम साहब थे, पेरियार थे, उन्होंने ये बात बताने का काम किया कि हमारा साझा दुश्मन कौन है। Ideology. Which ideology is our enemy? Enemy in front of us. Brahmanism. Whoever following, whoever carrying the Brahmanism in their mind, those people are our enemies. Nowadays, every Brahmin, I cannot find, still now I couldn't find a single Brahmin, a good Brahmin in my life. Every Brahmin having their own idea. He is following his own idea. तो आज की डेट में जो ब्राह्मण, मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक भी ब्राह्मण को नहीं देखा जो अपने विचार के साथ ना, वो कौन सा विचार लेके चलते हैं। आज ब्राह्मण, प्रत्येक ब्राह्मण ब्राह्मणवाद को धारण करके चलता है। So that ideological war between Aryans and Dravidians, we people are Dravidians. Our common enemy is to fight against the Aryavard. तो हम द्रविड़ मूल के लोग हैं, द्रविड़ नस्ल के लोग हैं, और हमारा जो साझा दुश्मन है वो आर्य है। तो हमें जो संघर्ष करना है वो संघर्ष आर्यवाद के खिलाफ होना चाहिए, आर्यों के खिलाफ होना चाहिए। So why Guru Nanak started his cultural movement? Why Guru Gobind Singh, 10th Guru, 1699, when the Khalsa born, he told, what he told? He told to give the power to the poor among the poor to the society. तो इसीलिए जब गुरु नानक ने पंजाब में उन्होंने करीब 7 देशों का दौरा किया, उसके बाद उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की, तो उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिमों में भी नीचों के साथ हूं, नीचे अंदर नीची जाति, नीचे मैं नीच, नानक तुमके संग साथ। तो गुरु नानक की ये फिलॉसफी थी। उसी में जब 1699 में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी, तो उन्होंने कहा कि इन गरीबों
हाँ, एक गरीब शिखम को दो पातशाही, याद रखे हमारी गुरुआई। तो उन्होंने शूद्रों को, दलितों को, पिछड़ों को पातशाही देने के लिए उनको खालसा बनाया। और ये कहानी हमारे जो गुरु है, हमारे जो हमारे संगठन के अगुआ है, वो इस बात को हमेशा याद रखे कि ये जो खालसा है इसका उद्देश्य क्या है। This movement, this cultural movement, political movement, social movement started from Kabir, Ravidas, Guru Nanak. Those gurus started this movement. ये जो जिस मूवमेंट की आज हम बात कर रहे हैं, इस मूवमेंट की शुरुआत करने वाले रविदास, कबीर, गुरु नानक से परंपरा चली आई है जो कांशीराम जी तक चली है। और उसी मूवमेंट को आज हम पुनर्जीवित करके उसको गति देने के प्रयास में लगे। Because Guru Nanak wanted to, Guru Ravidas wanted to see this country as a casteless free country, na casteless. He wanted to create a casteless society, classless society also. Not only caste, classless society also. तो जो गुरु नानक का आंदोलन था वो सिर्फ जाति विहीन समाज का निर्माण करना है, तो वो तो वर्ग विहीन समाज भी चाहते थे। So I want to tell you, most of the people are scheduled caste here and OBCs also here. Manuwad Kanshiram ji transformed from Dalit to Bahujan. तो यहाँ पे क्योंकि ज्यादातर SC, ST, OBC के लोग हैं और मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो मानववाद कांशीराम साहब का मूवमेंट था वो दलितवाद से बहुजनवाद की ओर उठाने का मूवमेंट था, आगे ले जाना। As long as you are a Dalit, you can never become a ruler of this country. तो जब तक आप दलित बने रहते हैं तब तक आप देश के शासक नहीं बन सकते। ये बात आप अच्छी तरह से नोट कर लें। As long as you are a Dalit, your mind become conditioned and your mind cannot permit to think beyond reservation. जब तक आप दलित बने रहेंगे तब तक आपका जो मानसिकता है वो संकीर्ण रहेगी और आप रिजर्वेशन के बाहर नहीं सोच पाओगे। So you transform yourself from Dalit to Bahujan. Hereafter you don't say your caste. Hereafter you don't say I am from the Dalit community or scheduled caste community. If you say the scheduled caste community means you are praising, unknowingly you are praising the Brahmins. So unknowingly you become a part of the Brahmanwad. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप दलित से बहुजन बनने का प्रयास शुरू करो और आज के बाद आप ये हम दलित है, हम ये है, हम वो है, ये कहना छोड़ दो। अगर आप जाति का ही गुणगान करते रहते हो तो इसका मतलब यह है कि आप ब्राह्मणवाद को पनपा रहे हो, ब्राह्मणवाद को जिंदा रखना चाहते हो। And you also stop to give any memorandum or never you should not give any petition to anybody. और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप ये ब्राह्मणवादी सरकारों को मांग पत्र देना, मेमोरेंडम देने की जो प्रवृत्ति है, आदत है, उसको त्याग करो। Most of the organization are creating a lot of activists in the name of activists. They are producing a lot of chamchas. The chamchas are going behind the IAS officer, IPS officer with the memorandum. मैं देखता हूं कि सामाजिक आंदोलनों के नाम पे बहुत सारे चमचे पैदा किए जाते हैं और वो चमचे में मांग पत्र लिए IAS, IPS के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। You stop to give any memorandum or petition to the Manuwadi officers or Manuwadi political leaders. तो ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप ये मान पत्र जो मनुवादी अधिकारी है, मनुवादी नेता है, उनके सामने मान पत्र देना बंद करो। If your mind is having this type of idea means don't come and join in our party. अगर आपकी मांगने वाली प्रवृत्ति ही बनी रहती है तो आप इस पार्टी के लायक नहीं है, आप इस पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आपको Your hand should like this, not like this. आपका जो हाथ है वो देने की मुद्रा में होना चाहिए, अब मांगने वाले की मुद्रा में नहीं होना चाहिए। Most of the people like their hand like this. This hand, your hand like this means
your mindset is like a Dalit. ये जो हमारे लोगों का जो मानसिकता है वो मांगने वाली है। अगर आपका हाथ हमेशा ऐसा रहता है कि ये दरिद्रता, ये दलित मानसिकता की निशानी। So that's what Kanshiram ji clearly told, that this movement is not for the social justice. You don't talk about the social justice because they are having their justice. Manuwad is having their own justice. That Manu Dharma is their social structure itself says some justice. Brahmins right to education, Kshatriya has to rule, and Vaishya has to have their own economy. Shudra, so duty is to serve. That is their justice, social justice. How many days in the name of social justice you are taking your memorandum to the government officers and as well as Manuwadi parties? तो इसीलिए माननीय कांशीराम साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहा। तो न्याय किससे मांग रहे हो आप? ब्राह्मणवादी ताकतों से। और उनका जो न्याय देने का ग्रंथ है, व्यवस्था है, वो क्या है? मनुस्मृति है। तो उसमें उन्होंने लोगों को न्याय दे रखा। ब्राह्मण जो है शिक्षा दे, राज करेंगे। ठाकुर जो है तो भूमि के कब्जेदार होंगे, हथियार के कब्जेदार होंगे। और जो क्षत्रिय है वो व्यापार के कब्जेदार होंगे। बाकी जो शूद्र है वो इन तीनों की सेवा करेंगे। ये है ब्राह्मणों का न्याय व्यवस्था, ब्राह्मणों का न्याय देने का तरीका। इसलिए माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि ये न्याय हमको सामाजिक न्याय नहीं चाहिए, ये जो व्यवस्था है इसमें बदलाव चाहिए, सामाजिक परिवर्तन और बहुजन समाज के आर्थिक मुक्ति। यह है माननीय कांशीराम साहब का आंदोलन। So social justice in other countries, constitution ensures the social justice in all countries. In all countries, in the country's constitution ensures social justice. That is different because there is no Varna system there. They are only struggling for the social justice. But here in India, it is not applicable. तो और बाकी के दूसरे देश है वहां सोशल सामाजिक न्याय की व्यवस्था वहां के संविधान में है। वो वहां की जो समाज व्यवस्था है वहां के हिसाब से ठीक है, लेकिन यहाँ भारत में ये सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट कामयाब नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो समाज है वो जातियों में डिवाइड है। So our justice, social justice ensured in the constitution 22.5% reservation to the SC/ST. Whether they got their justice in the government sector, I am asking you. Only 7%. Our 7% are the employees, government employees. Now, but the justice, social justice, the constitution ensured 22.5%. जो संविधान है वो हमारे लोगों के लिए 15 और 7.5 यानी कि 22.5% सामाजिक न्याय की व्यवस्था करता है। लेकिन आज तक क्या वो न्याय आपको मिला? आज भी जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो SC/ST की जो पोस्ट है वो सिर्फ 7% है। तो सोशल जस्टिस कब तक मानते रहेंगे आप सामाजिक न्याय? So they are not giving a post to our community. That's what you people are starting to say, that we need a social justice. We need a social justice. The same situation to the OBC also. OBC in India around 60%. In the 2011 census, it shows more than 58%. But in government sector, how many people are getting? Only 4% reservation there. और जब जो सरकारी क्षेत्र है उसमें जब आपकी वैकेंसीज पूरी होती तब आप रेप स्लोगन लगाना शुरू करते हो, सामाजिक न्याय दो, सामाजिक न्याय दो। यही हाल ओबीसी का भी है। ओबीसी की आबादी इस देश में 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 7%, लेकिन सरकारी सेक्टर में जॉब में कितने हैं? 60% आबादी वाले लोग 4% सरकारी सेक्टर में जॉब में हैं। Who is controlling the social justice? तो ये जो सामाजिक न्याय है इसका कंट्रोल किनके हाथ में है? We have to think who is holding that power. तो आप
आपको ये सोचना चाहिए कि सामाजिक न्याय देने का जो पावर है, जो ताकत है, वो किन लोगों के हाथ है। If your mind is occupied with the Ambedkarism, you couldn't find the in-depth meaning of Manuwad Kanshiram ji's thought. तो अगर आप अम्बेडकर बाद जो माइंड सेट है आज का, उसके हिसाब से देखोगे तो आप समस्या को नहीं देख पाओगे। Kanshiram. जब आप कांशीराम के जो देखने का तरीका है, जब उस तरीके से देखना शुरू करोगे, तब आपको असली समस्या दिखेगी। So that's what Manuwad Kanshiram we started this movement for. Says that this movement is for social transformation. इसलिए मानववाद कांशीराम साहब ने कहा कि जो हमारा आंदोलन है, ये सामाजिक न्याय का आंदोलन नहीं, ये सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन। You too also start to say that I associated with the social transformation movement. Don't say that you are associating with the social justice movement. You start to say that I am part of the social transformation movement. इसलिए मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अब ये कहना शुरू करें कि हम सामाजिक न्याय मूवमेंट का हिस्सा नहीं, हम सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का हिस्सा हैं। Are you ready? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? So you are silent. I observe that you are introspecting yourself. आप की जो चुप है, वो मैं समझता हूं कि आप स्वचिंतन की मुद्रा में है आप, इसलिए आप इतने गंभीर तरीके से बैठे हुए हैं। They ready to came openly to fight with us, our enemies, in the name of Sanatana Dharam, with us. अभी आप देख रहे हैं पूरे देश में सनातन धर्म के नाम पे वो खुले तौर पे युद्ध मैदान में आने को, कूदने को तैयार करें। So some people, OBC people also don't know what is the meaning behind Sanatana Dharam. So they are also shouting, oh, Sanatana Dharam is a permanent. Sanatana Dharam is permanent means Varna is a permanent. तो हमारे कुछ लोग जो सनातन के मतलब को नहीं समझते, वो भी कहते हैं कि सनातन धर्म तो अपरिवर्तन है, उसमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो आप ये जान लो कि सनातन धर्म अपरिवर्तनीय है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जाति भी अपरिवर्तनीय है, आप शूद्र के शूद्र ही रहने वाले हो सनातन धर्म। So our threats and challenges are more in front of us. Our children are going to suffer if you are not ready to participate in the politics, our socio-political politics. I am not talking about the politics like a Congress, BJP. I am talking for the politics for our own समाज. तो आज हमारे समाज, हमारे सामने, हमारी आने वाली पीढ़ियों के सामने बेहद चुनौतियों भरा समय है। तो इसलिए इस चुनौती से अगर निपटना है तो आपको हमारी जो सामाजिक राजनीतिक जो राजनीति है, जो कांग्रेस भाजपा की राजनीति है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी राजनीति की बात कर रहा हूँ। उस प्लेटफॉर्म में आपको आना पड़ेगा, उसके विषय में आपको सोचना पड़ेगा। The direct war is going to happen in year 2024. तो ये दो विचारधाराओं का युद्ध आने वाले 2024 में खुला युद्ध होने वाला है। दो विचारधारा Aryans they are carrying their ideology, Sanatana ideology. Dravidians, we are all Dravidians. We are going to take the ideology of Manuwad Kanshiram. तो इस राजनीतिक युद्ध में एक तरफ आर्य ब्राह्मणवादी लोग हैं जो अपनी सनातन ब्राह्मणवादी विचारधारा के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ हम बहुजन द्रविड़ लोग हैं जो मानववाद कांशीराम और पेरियार की विचारधारा को साथ लेके खड़े हैं। How many of them ready to fight in the battle? तो आप में से कितने लोग 24 के युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हैं? Thank you. धन्यवाद। If you are ready to fight against the Sanatana Dharam means we are having only ideology in front of us.
तो अगर आप सनातन धर्म के खिलाफ युद्ध के मैदान में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अभी सिर्फ विचारधारा है। That ideology only kills our enemy's ideology. तो इसी विचारधारा के आधार पे हम जो दुश्मनों की विचारधारा है उसको समाप्त करेंगे। If you are ready to give your head, what? My hand? हथेली। Yeah, a person who is ready to give your head, that person only can eligible to fight against this Sanatana Dharma. तो जो व्यक्ति अपना सर हमारे हाथों में देने की क्षमता रखता है वही इस युद्ध में टिका रह सकता है, बाकी कोई नहीं। Our enemies are having money, mafia, media. What we are having? क्योंकि जो हमारा दुश्मन है वो पैसा, गुंडा और मीडिया, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, उसके हाथ की ताकत है। But in democracy, we need only a people. People are with us. Our people fail to use their mind as like a missionary, as like a sipai. If we go and change their mind, means we easily win. We easily become a ruler of this country. लेकिन हमारे पास लोग हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे पास मनी माफिया मीडिया नहीं है, लेकिन लोग हमारे हैं, संख्या हमारी ज्यादा है। तो मिशनरी कार्यकर्ता के तौर पर अगर आप अपने लोगों के बीच में जाते हो और उन्हें समझाते हो और अपने पक्ष में करते हो तो वही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, वही हमें विजय दिला सकता है। So दोनों पार्टी is playing with the names. Congress is playing with the name of India and BJP is going to play Bharat. They wanted to fool in the name of India and in the name of Bharat. तो अभी आप देख रहे होंगे कि कौन लोग भाजपा खेल रही है, इंडिया भारत, इंडिया भारत। तो एक भारत लेके चल रही है, एक कह रही हम इंडिया नहीं भारत बना देंगे, कह रही हम इंडिया नाम रखेंगे। तो इंडिया भारत का खेल चल रहा है और हमारे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। So lot of people throughout the country, the people are calling from the different parts of the country, chote organization, a organization which is working in state or otherwise some region. Those leaders are continuously making a call to me to make a very big broad-based Gadbandhan. They are continuously talking to me. We are also going to form one banner in the name of Dravida. तो एक तीसरा पक्ष भी है जो स्टेट लेवल पे राज्य स्तरीय क्षेत्र में एक्टिव पार्टियां हैं। बहुत सारी पार्टियों के नेताओं के फोन आते हैं कि हमें भी एक मजबूत गठबंधन बनाना चाहिए 24 के इलेक्शन के लिए। तो इसलिए हमने भी विचार किया है कि द्रविड़ों का भी एक गठबंधन होना चाहिए, कांग्रेस और भाजपा से अलग एक मजबूत गठबंधन देना चाहिए लोगों को। In the name of Dravidian, we are going to make one very big alliance throughout the country. तो ये जो द्रविड़ नाम से हम भी देश भर में एक राजनीतिक विकल्प, एक गठबंधन बनाने जा रहे हैं। In the month of December, we are going to have a very big meeting at the Delhi. So you too also prepare your ground. On the day, we will announce, our party will announce 543 candidates throughout the country. तो हम आने वाले दिसंबर महीने में दिल्ली में बड़ी जनसभा करके और जो भी हम गठबंधन का नाम देंगे उसका अनाउंस करेंगे, सार्वजनिक करेंगे उसको। और उसी दिन हम इस देश में जो 543 लोकसभा सीटें हैं उन सीटों, हर सीट में हम अपने कैंडिडेटों का नाम भी अनाउंस करेंगे। यह काम आने वाले टाइम में बहुजन द्रविड़ पार्टी करने वाली है, इसके लिए आप लोग तैयार हैं। And also, nowadays, it's a very big threat to our sovereignty.
especially our country sovereignty also and individual sovereignty also. Our people throughout the world, whoever the citizens of India, they are facing some problem because of wrong deeds, misdeeds of Modi. तो आपको एक और बात पे गौर करना पड़ेगा कि आज हमारे देश की और व्यक्तिगत संप्रभुता भी खतरे में है। और ये जो खतरा पैदा हुआ है, जो हमारी संप्रभुता पे आज आई खतरा पैदा हुआ है, वो मोदी की जो गलत नीतियां हैं उसकी वजह से ये खतरा पैदा हुआ है। Extra judicial killing is going on, not only here in India, the extrajudicial killing is happening out of the India also. तो अभी आप बहुत सारे केस देखोगे कि ये जब से ये सरकार आई है, ये न्याय व्यवस्था को धक्का बता के उससे बाहर जाके ये राजनीतिक हत्याएं करवा रही है। न सिर्फ इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर के देशों में भी, कई देशों में इस तरीके की हत्याएं हुई है। They already killed Loya, they already extrajudicial killing, and also Lingeshwari also, there's a writer, and more than 20 journalists also killed by this. आप देखेंगे कि जो जस्टिस लोया थे उनकी जो हत्या थी, और गौरी लंकेश जो एक राइटर थी उनकी जो हत्या थी, and 20 writers also. 20 जो लेखक और जो लेखकों की हत्या हुई है, वो सारे की सारी हत्याएं असंवैधानिक हत्याएं हैं। It is a very big threat at the international level to our country people. तो हमारे देश के लोग जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, वो इस विषय को लेकर भी बहुत गंभीर है, और ये हमारे लिए भी एक चिंता की बात है कि आज हमारी जो संप्रभुता है, संवैधानिक संप्रभुता खतरे में है। Through this national executive meeting, I am telling to the whole Bahujan Samaj that before the world declares India as a terrorist country, Modi has to resign from the power. तो इस राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक में मैं इस मंच से ये ऐलान करना चाहता हूं कि दुनिया के अन्य देश हमारे देश को आतंकी देश घोषित कर दे, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। Because the whole world is sitting together and talking about the India's stand. Because you people don't know what is going on at the international platform. One side China is coming and occupying our land. On another side, extrajudicial killing happening. Our own team, our own people, raw and diplomats join together and killing the other country people. These are all very big threat to the our Indian, especially for the students, those who are getting an education at the abroad. तो आप पूरे देश में, अब आप लोगों को शायद न पता हो, लेकिन पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा चल रही है कि हमारे जो रॉ एजेंट हैं, जो हमारे राजदूत हैं, वो गैर संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करके विदेशों के नागरिकों को मार रहे हैं। That's why एक तरफ इधर चाइना जो है हमारे जो लैंड है हमारे देश में, उसको कब्जाता जा रहा है। तो पूरी दुनिया में ये जो असंवैधानिक हत्याएं सरकार द्वारा कराई जाती है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, that's what I am saying through this meeting. इसलिए मैं इस बैठक में ये बात कह रहा हूं, Before the world declares India as a terrorist country, Modi has to come, step down from his power. इसलिए इस बैठक में मैं जोर दे के ये बात कह रहा हूं कि दुनिया के दूसरे देश हमारे देश को आतंकी देश में घोषित कर दे, उससे पहले इस देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। No, you don't think that Congress is a good. If I am saying that Modi is bad, you don't think that Rahul is a good.
So he is more culprit than the Modi. तो अगर मैं कह रहा हूं कि भाजपा या मोदी खराब है, तो आप ये मत सोचने लगे ना कि इसका मतलब कांग्रेस अच्छी है या राहुल गांधी अच्छा है। ये जो राहुल गांधी और कांग्रेस है, ये भाजपा से भी ज्यादा भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट पार्टी। So Congress did a lot of genocides. They killed Adivasi people at Chhattisgarh and as well as Jharkhand, and even they killed the Sikh people and as well as Tamilian. They killed a lot of people, Congress. क्योंकि अगर कांग्रेस के राज में आप देखोगे तो नरसंहार की एक लंबी फहरिस्त नजर आएगी। कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ झारखंड में लाखों आदिवासियों की नरसंहार किया, पंजाब में सिखों की हत्याएं की, Tamilians also. वहां तमिल में लाखों तमिलियनों की हत्याएं। ये जितने भी बड़े बड़े नरसंहार आप देखोगे, ये सब कांग्रेस राज में ही हुए हैं। These people, this Modi government, they are doing a legislative genocide. They are doing a cultural genocide. It is more dangerous than the ordinary genocides. ये जो लेकिन जो मोदी सरकार है, ये विधायी नरसंहार करने पे तुली हुई है, ये सांस्कृतिक नरसंहार कर रही है। अगर ये दोनों के नरसंहार की तुलना करोगे तो कांग्रेसी नरसंहार से भाजपाइयों का जो नरसंहार है वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। So you are a leader. You are all leaders are sitting here. You have to build your courage. You build your communicate skills. You start to write. You start to speak. You have to become a good orator. Then only our people's mind will change. आप यहाँ पे तो बैठे हो कॉमन पीपल नहीं, आप सब लीडर है अपने अपने प्रदेश के क्षेत्र के। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि आप अपना हौसला मजबूत करिए, आप लिखना शुरू करिए, आप लोगों के सामने वैचारिक बात करना शुरू करिए। आप जितना इस तरीके से काम करेंगे समाज को उतना फायदा होगा। Hurry to take a lot of foods. You want to become a mustiwala. You are thinking that you want to become a mustiwala, like a mustiwala. Instead of taking more food, I am telling to all the leaders, kindly go through the book of Manuwad, Kanshiram and Periyar. At least monthly once, or at least you take 3 months one, you finish one book. It develop your mind. तो ये खा खा के तोड़ बढ़ा लेना, गाँव पहलवान जैसे दिखने लगना, इससे हमारे समाज का भला नहीं होगा। आपको अपनी बुद्धि को खुराक भी देनी पड़ेगी, और उस बुद्धि को खुराक कहाँ से मिलेगी, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप पढ़िए, पेरियार की या कांशीराम की जीवनी पढ़िए, उनके संघर्ष को पढ़िए, और कम से कम 3 महीने में उनकी एक बुक खत्म करिए। तो जब आप अपने दिमाग को खुराक देना शुरू करेंगे, तब परिवर्तन आना शुरू होगा। If your body is like a Bahujan, during the election time, some people wanted to use like a body gate. तो अगर आप सिर्फ खा खा के पहलवान जैसी बॉडी बनाओगे, तो उसका चुनाव आएगा तो जो नेता है वो आपको एज ए बॉडी गार्ड की तरह यूज कर लेंगे। So maybe they may use for individual, but if you learn some books, if you get some thoughts, then you can manage a crores and crores of people. तो ये जो शारीरिक डेवलपमेंट है, ये एक व्यक्ति के लिए फायदा पहुंचा है। अगर आप किसी के बॉडी गार्ड बनते हो तो उसकी सुरक्षा कर सकते हो, लेकिन जो मानसिक डेवलपमेंट है, वो आइडिया जो आपका दिमाग है, अगर वो वर्क करता है तो उससे आप करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। Whether you think that 60% in democracy, OBC people, whether you feel any guilty that our representative is not one in Supreme Court, that is a very, very big shame to us. Whether you are not like that. हमारे ओबीसी की जो आबादी है वो करीब 60% है, और यहाँ पे बहुत सारे ओबीसी भाई बैठे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप कभी इस बात का दुख महसूस करते हो, दर्द महसूस करते हो कि इतनी आबादी होने के बावजूद भी आज तक सुप्रीम कोर्ट में आपका एक व्यक्ति नहीं पहुंच पाया?
क्या आपको इस बात का दुख कभी होता है या नहीं होता? In Supreme Court also, in legislation also, Congress party, BJP party, Aam Aadmi party, they are controlling all. They are controlling in democracy. Only chota na, like very microscope community. They are holding and they are controlling you. But in democracy, you are the majority. You fail to vote to our vote. चाहे न्यायपालिका के माध्यम से हो, चाहे विधायिका के माध्यम से हो, चाहे कार्यपालिका के माध्यम से हो, आप जो बहुसंख्यक समाज को मुट्ठी भर संख्या वाले लोग, माइक्रोस्कोप कम्युनिटी वाले लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि संख्या बन में अगर आप चाहो तो इस देश की शासक बन सकते हैं, इतनी आपकी आबादी। So the fight is between power and powerless. We are a democracy. We are the power. They are powerless. यहाँ सत्ता और सत्ताधीश और सत्ताविहीन लोगों के बीच का संघर्ष। तो अगर आप लोकतंत्र में देखोगे तो हम बहुसंख्यक हैं, हमें इस देश का शासक होना चाहिए। But powerless democracy, microscope community, powerless people are having the power. Like you are having the power, but you are people, you are powerful people are roaming like a beggar. तो ये एक दुर्भाग्य की बात है कि आप बहुसंख्यक होते हुए भी आप भीख मांगने की हैसियत में हो, और जो मुट्ठी वाले हैं वो सत्ता में बैठ के आपको देने की हैसियत वाले बने हुए। So we are ready to get a power at the center. That's what we are going to declare a three-wing today. One is तो इसलिए अब हमें बहुजन समाज को पावर में आना होगा, और इस पावर की लड़ाई के रास्ते में आज मैं बहुजन द्रविड़ पार्टी के 3 विंग्स डिक्लेयर करने जा रहा हूं। first wing is students wing, Bahujan Dravida Students Friend. So they are all law college students. They are going to organize throughout the country. Throughout the country, they are going to organize in the name of Bahujan Dravida Students Friend. They go to universities, they go to colleges to talk about our philosophy, our ideology to the other university students. Because without students, they are the power, they are having some energy. We have to use those energy in an intelligent manner. So that's what today we are declaring 5-member committee. They are all conveners. They are all conveners at the national level. Their job is to organize the students throughout India. तो ये आज से ये हमारे बहुजन द्रविड़ पार्टी की स्टूडेंट विंग है, जो बहुजन द्रविड़ स्टूडेंट फ्रंट के नाम से जानी जाएगी, और उस फ्रंट के ये सभी कन्वेनर हैं, संयोजक हैं अलग अलग प्रदेशों के, और ये सब जो है तो एक ही कोर्स को पढ़ने वाले ये सब LLB BA LLB के छात्र हैं, एडवोकेट। तो इनका काम होगा कि ये अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग कॉलेजों में जाएंगे, और जो हमारी बहुजन द्रविड़ विचारधारा है उससे जो स्टूडेंट लॉबी है, तो छात्र वर्ग है, तो उसको जागरूक करने का, उसको अपनी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने का काम करेंगे, और ये सारे लोग मिलकर इस संगठन को संयोजित करेंगे। ये सब उसका जो है तो संयोजन। Very soon you have to organize one cadre camp for students, huh? और अब आप लोग काम में लग जाएंगे, और बहुत जल्द ही हम लोग जो हमारे बहुजन द्रविड़ स्टूडेंट है, बहुजन द्रविड़ स्टूडेंट फ्रंट के नाम से उनका एक कैडर कैंप करेंगे दिल्ली के अंदर, और लोगों को मतलब इसको एक राष्ट्रीय स्तर की विंग तैयार करेंगे। ठीक है, Thank you. ओके, धन्यवाद। And the second wing is IT wing. I am calling Arya Singh. हमारे दूसरी विंग है, यूनिट है, वो IT सेल है, IT विंग। Our Aryan Singh from UP Uttar Pradesh, and Selva recently he edited one movie, Shudra to Khalsa movie.
in Tamil. Now he is doing editing that same movie in Telugu. The both are ready to work for our ITV. Very soon they will conduct how to use a technology to spread our Kanshiramji's mission at the national level and international level also. तो ये मिस्टर आर्यन सिंह हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। सरदार सलवा सिंह जी आप तमिलनाडु से हैं। आपने अभी एक पार्टी जो सूद्रा टू खालसा मूवी है उसको हिंदी से तेलुगु में, इंग्लिश से तमिल में डब कराने का काम किया था। अभी उस मूवी का तेलुगु में डबिंग का काम चल रहा है। तो आज से आप दोनों त्राटी का जो आईटी विंग होगा उसके आप दोनों संयोजक हैं और बहुत जल्द हम लोग इस देश में अपने लोगों को इस आईटी विंग से जोड़ेंगे। जो हमारे यूथ है जो आईटी विंग की जानकारी जो रखते हैं टेक्निकल क्षेत्र में, और हम ये इंश्योर करेंगे कि कैसे जो हमारे गुरुओं का संदेश है वो सोशल मीडिया और भी जो प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा हम अपने लोगों तक पहुंचा सके या इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने गुरुओं के संदेशों को पहुंचा सके और उनसे उनको जोड़ सके। इसका काम आईटी विंग का होगा। In our society, 50% women and 50% men. But still now we are fighting for women's rights. So that's what we are going to start a women wing at the national level. I invite Savitri, Sita and as well as General Kaur and another Muslim. You also come and Odisha. Your job is to spread our Guru's mission among the women. तो हमारे समाज, हमारा जो समाज है उसमें महिलाओं की जो संख्या है वो आधी आबादी है, 50% आबादी है। लेकिन आज भी हम उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनको जो हक अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाए। तो इस लड़ाई को और तेज धार देने के लिए बहुजन द्रविड़ पार्टी की आज से एक महिला विंग होगी जो महिला बहुजन द्रविड़ पार्टी की विचारधारा से इस देश की आधी आबादी को तोड़ने का काम आप लोगों का। धन्यवाद। So in this, I conclude my speech. Jai Kanshiram, Jai Periyar, Jai Beghampura Bharat. We can create even casteless society only by becoming rulers of India.